गुड मॉर्निंग चर्च। आज क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार होकर आए हैं? क्या हम एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हैं? क्या हम ये आशा करते हुए आए हैं कि आज हम उससे कुछ पाएंगे, आज हमें उसकी उपस्थिति में पूरी तरह भर जाएंगे? आज हम अनॉइंट होना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, और हम कहना चाहते हैं कि वो धन्य 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 है उसका नाम। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे कितना प्यार किया कि उसके बारे में कुछ भी कहना कम है, सब हमारे शब्द कम पड़ेंगे। इसलिए मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता Psalms 103। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, all diseases, not one or two, all our diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repays us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love towards those who fear him. As far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. हमारे पाप जैसे भी क्यों ना हों, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, कैसे भी क्यों ना हो, वो उन्हें हमसे दूर करता है, और उसका प्रेम कभी हमारे लिए ठंडा नहीं होता है। हालेलुया। As a father shows compassion to his children, जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, बिल्कुल उसी तरीके से so the Lord shows compassion to those who fear him. For he knows our frame. He remembers that we are dust, that we are nothing, that we are just dust that flies away. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. For the wind passes over it and it is gone, and its place knows it no more. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children. He never forgets his promises. He always keeps his promises. He is a promise-keeping God. Yes, to those who keep his covenant and remember to do his commandments. The Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over us all. Bless the Lord, O you his angels, you mighty ones who do his word, obeying the voice of his word. Bless the Lord, all his hosts, his ministers who do his will. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. Hallelujah. This is such a beautiful word. Such a beautiful word when we read. It just fills me with so much love more for my God. Hallelujah. उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा महान है, अपार है। हालेलुया। मेरे खुदा
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ वो सच्चा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो महान परमेश्वर, हालेलुया, ट्रस्टवर्दी गॉड, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद। ओरा वखीबी ओरा वशिकी अरबा। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, प्रभु ऐसा दो वरदान, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, आभारी हूँ प्रभु मैं,
जी, तेरे महान प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए जो अपार है। तेरे उपकार कितने ही बड़े हैं मेरे लिए, मेरे जीवन में परमेश्वर। तूने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, तूने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा परमेश्वर। तू एक सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर। Yes, Lord, you're a faithful God, Father. And we want to thank you and bless your name, Lord. My soul wants to bless you, Lord, from within me, Lord. I desire to give you all honor and glory, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो हमें आनंद के रस्तों पे लेके चलता है। हालेलुया। चाहे हम किसी भी तकलीफ से, परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हो, बट वो हमें हमेशा आनंद की ही राहों पे लेके चलता है। हालेलुया। For the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, कि उसने हमारे हर पाप को नज़रअंदाज किया है, बल्कि उसने हमारे पाप को याद नहीं रखा। हमारे पापों को हमसे कितना दूर कर दिया, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे हर तुम्हारे रिग्रेट को दूर करूँगा, हर पाप को, हर गलती को सही करूँगा। वो कहता है कि उसकी उपस्थिति में हम जाएंगे तो वो हमें आज़ाद करता है, हमें चंगा करता है, हमें आज़ाद करता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की तेरे भवन में आनंद की तेरे भवन में आनंद की यीशु तू संग तो जीवन में संतोष है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूर, तेरे भवन में आनंद की भरपूर। यीशु तू संग तो जीवन में संतोष है। तेरे भवन में आनंद की भरपूर, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़े
सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है। हालेलुया। धन्य तेरा नाम। हालेलुया। धन्य हो तेरा नाम परमेश्वर। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में परिपूर्णता में। धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में जंगल के रास्ते। धन्य तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तब भी। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब कुशल मंगल हो। धन्य तेरा नाम। मुश्किल की राहों में दर्दों गले अर्पण में। धन्य तेरा तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाऊं तब भी। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही देता है यहोवा मेरा दिल का है। धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही देता है मेरा दिल का है। धन्य तेरा नाम। तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा तेजस्वी तेरा नाम धन्य 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 धन्य। आकाशों के ऊपर और पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर तेरा नाम महान है प्रभु। हालेलुया। तुझे आदर और महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि सब तेरा है परमेश्वर। सब तूने ही रचा। मेरे आदर और महिमा तुझे। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा
स्तुति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होए सदा। Yes, Lord. मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होए सदा। मेरे जीवन में Yes, Lord. प्रभु हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। हम जो भी करते हैं परमेश्वर तू महान सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आया, हमारे लिए अपनी जान को दिया और हमारे लिए आज़ादी को पा लिया परमेश्वर। हमारे लिए तूने आज़ादी को पा लिया यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरे कूड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़
मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। Yes, Lord, you are our life giver, Lord. You have given us life and life more abundantly. As the word says that the Son came to give life and life more abundantly. Yes, Lord, you are the life and the resurrection. Oh, Lord, you have the keys. Hallelujah. Father, you are the victor over every power of darkness, Lord. And nothing harmful can come against us, Lord. In Jesus' name I believe, Father, that we are protected. Yes, Father, by your blood, by your name, the victory that you have given us, Lord. We walk in that victory, Lord. हम चंगाई में चलते हैं परमेश्वर और विजय में चलते हैं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तूने हमारे लिए उस चंगाई को पा लिया, तूने हमारे लिए उस आज़ादी को पा लिया, तूने हमारे लिए
विजय को पा लिया परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आने वाले समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपने दास के द्वारा हमें अपना वचन बता परमेश्वर। अपनी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर कर परमेश्वर। तेरे दास के द्वारा जो वचन आज हम सुनते हैं परमेश्वर, हमारे हृदयों में जाकर परमेश्वर एक पक्की पकड़ पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता, धन्यवाद आबा पिता। Thank you for your word that would accomplish what it has to purpose. और धन्यवाद पिता, तेरा जो वचन का मकसद है वो उसको पूरा करेगा। Thank you, Father, for sending your son, only son for us, Lord, on the cross. और धन्यवाद पिता, आपके एकलौते पुत्र को हमारे लिए कलवरी क्रूस पर भेजने के लिए। Thank you, Abba. Thank you, Lord Jesus. You resurrected and gave us the Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद यीशु, तू पुनरुत्थित हुआ और जो आज का जो परमेश्वर है पवित्र आत्मा हमें दिया। Oh, we thank you. Thank you, Abba Father, for sending your Holy Spirit among us, और the हम God of धन्यवाद now. देते हैं पिता, तेरा पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर हमारे बीच में भेजने के लिए। Thank you, Holy Spirit, that you work miraculously and we give all glory to Jesus. और धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू चमत्कारिक रूप से कार्य करता है और यीशु को महिमा देता है। Oh, we thank you, Holy Spirit, you take control. और हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तू नियंत्रण ले। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हर एक विचार, जो सोच, जो प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों के विरोध में उठती है, उनको सारे को, सभी को आपके वचनों के आपके नीचे लेके आते हैं। Sanctify our ears with your precious blood, Lord. प्रभु आपके पवित्र लहू के द्वारा हमारे कानों को शुद्ध कर, And your blood would accomplish what it has to purpose, और God. तेरा लहू उस मकसद को पूरा करने पाए जो मकसद है। Thank you, Lord, that even as we hear your word, Lord, and your word would accomplish what it has to purpose. और धन्यवाद प्रभु, तेरे वचनों को जब हम सुनते हैं, तेरा वचन जो है उस मकसद को पूरा करने पाए। Thank you, Abba Father. धन्यवाद अबा पिता। Thank you, Lord Jesus Christ. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Holy Spirit, who is among us. और धन्यवाद पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है। You are a helper, a comforter, a counselor, a strengthener. और तो हमारा सहायक है, तुम हमारा शिक्षक है, तो हमें सांत्वना देने वाला है। We thank you, you are with us, Lord. और हम धन्यवाद देते कि तू हमारे साथ है। You bring all glory to Jesus. और तू सारी महिमा यीशु को देता है। And we thank you that you are building the church and the gates of Hades will not prevail. और हम धन्यवाद देते कि तू कलीसिया का बना रहा है और जो अधलोक के फाटल है वो कभी प्रबल नहीं होंगे। Thank you for your word, Lord. धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचनों के लिए। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass away. और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। In Jesus' name we pray. यीशु Amen. के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, Amen. Amen. आमीन, Amen. आमीन। Exodus 33 verse 16 says, और निर्गमन 33 अध्याय उसका 16 वचन कहता है। Exodus 33 और निर्गमन उसका 33 अध्याय verse 16. और 16 वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Wherefore, wherein now shall it be known that I have found favor in your sight, and I and your people? Is it not in that thou goest with us, so that we are separated, and I and your people from all the people that are upon the face of the earth? और निर्गमन उसका 33 उसका 16 वचन कहता है कि यह कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे।
Moses was asking, how can I go without you? और मूसेस पूछ रहा था परमेश्वर कि मैं तेरे बिना कैसे चल सकता How हूँ, can I take so many people, 6 lakhs people of Israel out from Egypt and go to the promised land that you have promised? और मैं इजिप्ट से मिस्र से कैसे 6 लाख लोगों को लेकर उस वायदे की भूमि में अकेला जा सकता हूँ। And God's personal presence distinguished the Israelites from all the other people. और परमेश्वर की एक विशेष उपस्थिति इज़राइल के लोगों के साथ में थी जो दूसरे लोग थे उसके अलावा। Numbers 14:14. और गिनती 14 उसका 14 वचन, Numbers 14:14. और गिनती 14 और उसका 14 वचन। And they will tell it to the inhabitants of this land. They have heard that Jehovah art in the midst of this people. For thou, Jehovah, art seen face to face, and your cloud stands for over them. And thou goest before them in a pillar of cloud by day and in pillar of fire by night. और गिनती उसका 14 वचन, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर उनके आगे चला करता है। Hallelujah. All the other nations heard that the God was among its people Israel. और सब लोगों ने सुना कि जो परमेश्वर है वो इज़राइल लोगों के बीच में है। No other nations had God's intimate presence like the Israelites. और कोई भी दूसरा राष्ट्र नहीं था इज़राइल को छोड़कर जिनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति थी। Every day God went before them. और हर दिन परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। God went before his people in a pillar of cloud to lead their way. और परमेश्वर उनके लोगों के आगे आगे अग्नि के खंबे में होकर उनके साथ चलता रहा। Every day, day. और हर दिन, हर एक दिन, The day the Lord went before his people in a pillar of clouds to lead their way. और दिन के बादल में जो खंबे और रात को अग्नि के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। Every night he gave them light. God gave them light in a pillar of fire. It never departed. और हर एक रात्रि में उनको परमेश्वर ने उजाला दिया जो अग्नि के खंबे के रूप में होकर जो उनसे कभी अलग नहीं हुआ। It never departed from them during all their journeys. और उनकी पूरी यात्रा में वो अग्नि का खंबा कभी भी उनके सामने से नहीं हटा। Exodus 13 verse 21 to 22. God's presence never departed during the day of all their journey. और उनकी पूरी यात्रा भर में परमेश्वर की जो उपस्थिति है उनसे कभी अलग नहीं हुई। Exodus 13 verse 21 says how and Jehovah went before them by a day in pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might go by day and by night. और निर्गमन 13 उसका 21 में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। Exodus 13 verse 22 says, और जो 13 है उसका 22 वचन कहता है, here you see how God during the day he went as a pillar of cloud to them to direct their ways. और यहाँ पे देख सकते कि परमेश्वर दिन के उजाले में कैसे बादल के खंबे में होकर उनके साथ चला उनको मार्गदर्शन करने के लिए। In Exodus 13:22 says, the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night departed not before the people. और निर्गमन 13 उसका 22 में लिखा है कि परमेश्वर दिन में जो है वो बादल के खंबे में और रात में आग के खंबे में होकर उनके चलता था। Hallelujah, God is with us. He will never leave you, never forsake you. और हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा He नहीं। is with you. He will always lead you. He will always follow you. और वो आपके साथ है, वो हमेशा आपकी अगुवाई करेगा, आपके पीछे चलेगा। Just acknowledge him. Just acknowledge the Holy Spirit and he will lead your way. और आपको उसको कबूल करना है आपके जीवन में पवित्र आत्मा को, और वो आपकी राह को अगुवाई करेगा। No other God has owned his people by mighty trials, signs, wonders and wars, and by a mighty hand. और कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं है जो सामर्थ के साथ में उनके साथ चलता है। By mighty trials, signs,
wonders and wars and by mighty hand. और अद्भुत कार्यों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा और अद्भुत कामों के द्वारा, आश्चर्य कर्म के द्वारा वो साथ में होता है। Deuteronomy 4 verse 7 says, और व्यवस्था विवरण 4 उसका 7 वचन कहता है। hallelujah. Deuteronomy 4 verse 7 says, और व्यवस्था विवरण 4 उसका 7 कहता है। hallelujah. It says how, Deuteronomy 4 verse 7, और व्यवस्था विवरण 4 उसका 7 वचन पढ़ते हैं हम। hallelujah. देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके लिए समीप रहता हो, जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। Hallelujah. Deuteronomy 4 7. और व्यवस्था विवरण 4 उसका 7 वचन। Hallelujah. And for what great nation is there that has a God so near unto them as Jehovah our God is whensoever we call upon him. और देखो कौन सी ऐसी बड़ी जाति है ये जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जिससे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम पुकारते हैं। So whenever you call upon God, he's always there. He hears you. और जब कभी आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो आपके साथ है, वो आपकी सुनता है। He hears you. Thank him that he hears you. और वो आपको सुनता है, उसको धन्यवाद दे क्योंकि वो आपको सुनता है। Thank God that he hears you. और धन्यवाद कि परमेश्वर आपको सुनता है। And Deuteronomy 4 verse 34 says, और व्यवस्था विवरण 4 उसका 37 वचन कहता है। hallelujah, hallelujah, 34, और 34 वचन। 4:34. और व्यवस्था विवरण 4 उसका 34 वचन। Hallelujah, 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 hallelujah. Our God is always there. और परमेश्वर 30 हमेशा हमारे साथ में रहता है। 34. Hallelujah. Oh God, oh has God essayed to go and take him a nation from the midst of other nations by trials, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by an outstretched arms, and by great terrors, according to all that Jehovah your God did before you in Egypt before your eyes. और फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति की दूसरी जाति के बीच से निकालने का कमर बांध परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा ऐसे बड़े भयानक काम किए जैसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में से तुम्हें देखते किए। Hallelujah. No other God और कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं has owned his people by mighty trials, signs, and by wonders, and by wars, and by mighty hand, and by an outstretched arms, and by great terrors, according to all that Jehovah God did for you in Egypt. और जिस Before परमेश्वर your ने इन eyes. सारी बातों को उनके लोगों के लिए किया, जो अपने बलि हाथ के द्वारा, बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा, चमत्कार, युद्ध और चिन्ह और परीक्षा के द्वारा उनको बचाया। The day you accepted Christ, God is always with you. और जिस दिन आपने परमेश्वर को ग्रहण किया उस दिन से परमेश्वर आपके साथ है। He is with you. He is in your trials, in your signs and wonders, and every war. और वो आपके साथ में है, आपकी परीक्षा में, आपके चिन्हों में, आपके चमत्कार में, हर एक समस्या में। Just stand still and praise God. और आप जो है वो परमेश्वर की स्तुति करना है। Even the Israelites could lose God's presence by sinning against God. और इजरायली लोगों ने जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर परमेश्वर की उपस्थिति को खोया। When the golden calf was made, और जब सोने का जो बैल है वो बनाया गया, God refused to go with them और परमेश्वर ने इनकार किया उनके साथ जाने के लिए, because they were stiff-necked people. और क्योंकि वो जो लोग हैं वो परमेश्वर को धिक्कार दिया उन लोगों ने। Exodus 33 verse 3. और निर्गमन उसका 33 अध्याय और 3 वचन। You know, God for 40 years, God was traveling with them. और 40 साल से परमेश्वर उनके साथ यात्रा में था। Exodus 33 verse 3. और निर्गमन 33 अध्याय उसका 3 वचन। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया। Exodus 33 3. और निर्गमन 33 उसका 3, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हटेले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, you are with us, God. और हाँ परमेश्वर तू हमारे साथ है। And
Exodus 33 verse 3. और निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और 3 वचन। 33:3. Hallelujah, hallelujah. Where the land God takes to the promised land. 33:3. और जहाँ पे परमेश्वर जो है वो वायदों की भूमि में उनको लेके चलता है। Yes, unto a land flowing with milk and honey. और जिस भूमि में दूध और मधु की धारा बहती है। 33:3. और निर्गमन उसका 33 अध्याय Yes. और 3 वचन। Yeah, and a land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of you, for thou art a stiff-necked people, as lest I consume you in the way. और तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। Because they sinned against God when Moses went on the mountain to speak to God. Israelites they collected the gold and made the golden calf. और क्योंकि जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पर्वत पर गया तो लोगों ने सोना इकट्ठा कर कर एक मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की और परमेश्वर के विरोध में पाप किया। That's why God didn't like that you worship any. He said, do not worship any other gods. और इसलिए परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया और परमेश्वर ने इसलिए कहा कि कोई भी देवता की पूजा न की जाए। Yes, because they made themselves a calf of gold. और क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से जो है बछड़े का सोने का बछड़ा बनाया। Till the time God was with them. और तब तक परमेश्वर उनके साथ में था। And God got angry with them. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उनके साथ क्रोधित होता है। And when the golden calf was made, God refused to go with them. और जब उन्होंने जो सोने का बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने इनकार किया उनके साथ चलने के लिए। Because they were a stiff-necked people. और क्योंकि वे हठीले लोग थे। Many times God removed them from his presence. और कई बार परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति से हटाया। But God had compassion again and again. लेकिन परमेश्वर बार बार उन पर तरस खाता था। Throughout history, so many generations, right from Adam till Moses, and then from Moses till David. 2 Kings 17:18 says, therefore Jehovah was very angry with Israel and removed them out of his sight. There was none left but the tribe of Judah only. और परमेश्वर के लोगों ने इतिहास में हम पूरे देखते हैं कि परमेश्वर ने बार बार परमेश्वर के लोगों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने उपस्थिति में से निकाला। और ये हम जो दूसरा जो राजा है 23 उसका 27 वचन में हम पढ़ सकते हैं। And Jehovah said, I will remove Judah also out of my sight, as I have removed Israel. I will cast off the city which I have chosen, even Jerusalem, and the house of which I said, my name shall be there. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा। और इस कारण इस यरूशलेम के नगर जिसको मैंने चुना और इस भवन जिसके विषय में मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा के विरुद्ध मैं हाथ उठाऊंगा। Hallelujah. God never liked people sinning. If you are not obedient and if you sin, God will remove you out. और परमेश्वर पाप करने वाले लोगों को कभी भी पसंद नहीं करता। अगर आप लगातार पाप करते तो परमेश्वर उसकी उपस्थिति में से आपको निकालता है। And if you ask forgiveness, He will allow. He is such a compassionate God. लेकिन अगर आप परमेश्वर को आपको दया मांगते हैं तो वो एक दयालु परमेश्वर है, वो आपके ऊपर तरस खाएगा। 2 Kings 24 verse 20 says. और जो दूसरा राजा 2 उसका 24 वचन कहता है, 2 Kings 24:20, for though the anger of Jehovah did it come to pass in Jerusalem and Judah, until he had cast them out from his presence, and Zedekiah rebelled against the king of Babylon. और दूसरा राजा 24 उसका 20 वचन, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि उसने अंत में उनको अपने सामने से दूर किया। Hallelujah. So if you don't walk in the presence of God, God will not like it. और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं तो परमेश्वर इसको पसंद नहीं करेगा। He
he had cast them out from his presence. और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उसकी उपस्थिति में से निकाल डाला था। 2 Kings 13 verse 23. और दूसरा राजा 13 23. और उसका 23 वचन। And but Jehovah was so gracious unto them and had compassion on them and had respect unto them because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and would not destroy them, neither cast he from his presence as yet. और परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी वाचा के कारण जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी उन पर कृपा दृष्टि की और न तो उन्हें नष्ट किया और न अपने सामने से निकाल दिया। Because God always remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा अपनी वाचा को जो है अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ याद किया। And that's why he used to not destroy them out from his presence. और इसलिए वो अपने उपस्थिति में से उनको नष्ट नहीं करता था। Moses cried to the Lord, if you are, Exodus 33 verse 15, Moses cried to the Lord, if your presence does not go with us, do not send us from here. और निर्गमन 33:15 में मूसा परमेश्वर के सामने रोता है और कहता है कि अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ न हो तो हमें यहाँ से आगे न भेजना। God wanted Moses to take the Israelites out from the land of Egypt. और परमेश्वर चाहता था कि मूसा जो है वो इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाले। You know, Israelites were 6 lakhs people with wives, children, and all the herds and cattle and so many things. और जो इज़राइली थे वो 6 लाख लोगों की संख्या में थे और उनके साथ बहुत सारे जो है जानवर, पशु पक्षी और बहुत सारे लोग थे। That's why Moses said, how can I take these people out? I want your presence to go with me. और इसलिए मूसा कहता है कि मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। Exodus 33:15 says, and Moses said unto God, if your presence do not go with me, carry us not up hence. और जो निर्गमन 33 उसका 15 वचन में लिखा है कि उसने कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। Even the great King David had to beg and plead, do not cast me away from your presence. Do not take the Holy Spirit from me. और यहाँ तक कि जो बड़ा महान राजा है दाऊद, उसको भी परमेश्वर के सामने रोना पड़ा कि मुझे अपनी आत्मा से और मुझे तेरी उपस्थिति में से मत निकाल। Psalm 51 verse 11. और भजन संहिता 51 उसका 11। Psalm 51 verse 11. और भजन संहिता 51 उसका 11। 51. Hallelujah, hallelujah. He says, do not cast me away from your presence and do not take away the Holy Spirit from me. और मुझे अपने सामने से न निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। It says in Psalm 51 verse 11, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. और भजन संहिता 51 उसका 11 में लिखा है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। First we see God in you. और हम पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर हमारे अंदर है। First is thing, the God in you. और परमेश्वर आपके अंदर है। The greatest good news of the new covenant, new creation is that God never leaves you nor forsakes you. और जो नई वाचा है यह सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। Hebrews 13:5 says, और इब्रानी 13 उसका 5 वचन कहता है, be you free from the love of money, content with things such as you have, for himself has said, I will no wise fail you, neither will I anywise forsake you. और 13 उसका 5 वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही से कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। God will never leave you nor forsake you. और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Since the year of 1980, I'm following God. God has never left me, never left me alone, never forsaked me. और 1988 से मैं परमेश्वर के पीछे चल रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे अभी तक कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं त्यागा है।
है। He was always with me in every trial, in every joy, in every area of our lives. और वो हमेशा मेरे हर एक परीक्षाओं में, हर एक मेरे आनंद में, मेरे जीवन के हर एक स्थिति में वो मेरे साथ थे। Jesus is with you always to the end of this age. और यीशु हमेशा आपके साथ है इस संसार के अंत तक। Matthew 28 verse 20. और मत्ती उसका 28 उसका 20 वचन। Jesus was teaching them to observe all things, and whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of this world. और यीशु ने कहा कि और उन्हें सब बातों को मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। So you are not alone, you are never alone. Jesus is always with you. और इसलिए आप कभी भी अकेले नहीं है, यीशु हमेशा आपके साथ है। Wherever you go to the end of this world, Jesus is with you. और इस संसार के अंत तक हम कहीं पे भी जाए, यीशु आपके साथ है। Yes, he will never leave you nor forsake you. और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Hallelujah. John 14 verse 16 says, the great helper, the Holy Spirit will abide with you forever. और यूहन्ना 14 उसका 16 वचन कहता है कि जो सबसे बड़ा सहायक है वो हमारे साथ में रहेगा हमेशा। John 14 verse 16 says, and I will pray the Father. Jesus says, I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may be with you forever and ever. और यूहन्ना 14:16 में यीशु कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। You know, Jesus is sitting at the right hand of our Father, and when he resurrected, he gave us the Holy Spirit, the God of now. और यीशु जो है अभी पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा है, लेकिन जब वो पुनरुत्थानित हुआ तो उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो आपका परमेश्वर है। That's why Jesus said, I will give you, he said, I will pray the Father, he will give you another comforter, and he will be with you. Holy Spirit is with you forever and ever. और इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। Hallelujah, hallelujah. Christ in you, lives in you, your spirit as the hope of glory, and moves freely. और जो पवित्र आत्मा है वो आपके साथ रहता है, जो आशा की, जो महिमा की आशा है, और वो आपको मुफ्त वो आजाद करता है, आपको स्वतंत्र करता है। Hallelujah. 2 Corinthians 6:16 says, और दूसरा कुरिन्थियों उसका 16 वचन कहता है। 6:16 says, 2 Corinthians 6:16, and what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, even as God has said, I will dwell in them, walk in them, I will be their God, and they shall be my people. और दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 16 में परमेश्वर कहता है कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। Hallelujah. You don't need to cry like Moses cried or David cried for God's presence, because God is already in you. और आपको मूसा या दाऊद के समान रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। In Christ you acknowledge his abiding presence and thankfully enjoy his presence. और मसीह में हमको परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन के अंदर कबूल करना है, जो हमेशा आपको आनंद देगा। Colossians 1:27 says, और कुलुसी की किताब 1 उसका 17 कहता है, to whom God was pleased to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Christ in you is the hope of glory. Hallelujah. Christ in you, the hope of glory. और 1:27 में लिखा है कि जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Christ in you, Christ is light, the light in you, the hope of glory. और जो मसीह आपके अंदर है वो महिमा की आशा है जो तुम्हारे अंदर रहती है। Hallelujah. Thank you for the light. Thank you, Lord Jesus, in our heart. He's always present. और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हमेशा वो हमारे हृदय में वास करता है, हमारे हृदय में रहता है। You are distinguished from the others by his great
presence in and around you. और आप उसकी एक बड़ी उपस्थिति के द्वारा जो आपके चारों ओर है, आप संसार के लोगों से अलग किए जाते हैं। You are distinguished from others by this great presence in and around you. और आप जो है दूसरों से अलग किए गए हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर है। God not only lives in you but also envelops you. और परमेश्वर सिर्फ आपके साथ नहीं रहता है लेकिन वो आपको चारों ओर, आपके चारों ओर रहता है। A Christian is enveloped by God. और एक विश्वासी जो मसीह है वो परमेश्वर के द्वारा चारों ओर घिरे हुए होता है। It's enveloped. You have seen envelopes, how it is covered. You are enveloped by God. और आप एनवलप को देख सकते हैं कि वो कैसे ढापे हुए होता है, वैसे ही आप परमेश्वर के द्वारा ढापे गए हैं। Psalm 32 verse 10 says. और भजन संहिता उसका 33:10 कहता है, Psalm 32 verse 10, many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in Jehovah God, loving kindness shall compass him about. और जो 32 उसका 10 वचन में लिखा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी परंतु यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। Hallelujah. He that trusteth in God, loving kindness compasseth him. Hallelujah. और वो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो परमेश्वर की करुणा से घिरा हुआ होता है। He that trusted, I trusted in my God, loving kindness shall compass me. और Amen. मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ इसलिए परमेश्वर की करुणा मुझे घेरे रहेगी। Psalm 34 verse 7 says. और भजन संहिता 34 उसका 7 वचन कहता है, Psalm 34 verse 7, the angel of Jehovah encampeth around them that fear him and delivereth them. और यहोवा के डरवे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The angel of Jehovah encampeth around them that fear him and delivereth them. और जो यहोवा के डरवे है उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए और उनको बचाता है। Hallelujah, hallelujah. See, the Lord is always with you. Don't fear. If you fear God, God is always with you. और देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा परमेश्वर आपके साथ में है। Psalm 125 verse 2. और भजन संहिता 125 उसका 2 वचन। Hallelujah. Psalm 125 verse 2. As the mountains are around Jerusalem, so Jehovah is around about his people from this time forth and forevermore. और जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। Hallelujah, hallelujah. As the mountains surround Jerusalem, God surrounds you. और जैसे Amen. पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए है वैसे परमेश्वर आपको घेरे हुए रहता है। From this time forth and forevermore till eternity. और अब से लेकर सर्वदा तक अनंत काल तक। Psalm 139 verse 5. और भजन संहिता 139 उसका 5 वचन। Psalm 139 verse 5. और भजन संहिता 139 उसका 5 वचन। Hallelujah, hallelujah. Psalm 139 verse 5. और भजन संहिता 139 उसका 5 वचन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रख के रहता है। Hallelujah. So they say, thou hast behind me and before and has laid your hand upon me. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखता है। The Hindi song goes on. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है. Hallelujah. Your hand, God's hand is behind me and before and has laid a hand upon me. और हिंदी में एक गाना भी है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रख के रखता है। Hallelujah. Psalm 139 verse 10 says. और भजन संहिता 139 उसका 10 वचन कहता है। Hallelujah. तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। Even there shall your hand lead me and your right hand shall hold me. Hallelujah. और तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे पकड़े रहेगा। God always takes your hand and leads you. और परमेश्वर हमेशा आपको हाथ को पकड़कर आपकी अगुवाई करता है। God's right hand holds me. Amen. और परमेश्वर का दाहिना हाथ मुझे पकड़ा हुआ है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
God, second thing, first what we saw, God in you. और दूसरा राजा में हमने देखा कि परमेश्वर हमारे अंदर है। Second we see is God before you. और जो दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है। God is going before you as a good shepherd. और परमेश्वर आपके आगे चलता है एक अच्छे चरवाह के रूप Isaiah में। 52 verse 12. और यशायाह 54 अध्याय उसका 12 वचन। God is going before you as a good shepherd, your rear guard. और परमेश्वर आपके आगे चलता है एक अच्छे चरवाहे के रूप में। For you, 52:12 says, for you shall not go out in haste, neither shall you go by flight. For Jehovah will go before you, and the God of Israel will be your rear ward. और यशायाह 52 उसका 12 वचन कहता है कि क्योंकि तुमको उतावले से निकाला नहीं कि और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। God is your rear guard. Amen. और परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। Simply follow him, listening to his voice. और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको उसकी आवाज सुनकर उसका अनुकरण करना है। Simply follow him, listening to his voice. और आपको सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर John अनुकरण 10 करना verse है। 4 says, और यूहन्ना 10 उसका 4 वचन कहता है, when he shall put forth all his own, he goes before them, and the sheep follow him, and for they know his voice. और तब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है और उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। Hallelujah, God hears, you can hear God's voice. और परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकते हैं। God 10:27 says, your king passes. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. और मेरी भेड़ मेरा शब्द Hallelujah. सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। Hallelujah. My sheep hears my voice, and I know that they follow me. और मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। Hallelujah. 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 Your king passes before you. और जो राजा है वो आपके सामने से चलता है। Your king passes before you as a captain of the army. और एक सेनापति के रूप में वो आपके आगे चलता है। Breaking all the barriers before you. और सारे बंधनों को तोड़ते हुए जो आपके सामने हैं। Micah 2 verse 10 says. और मिका 2 उसका 10 वचन कहता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Micah 2 verse 10 says. और मिका उसका दूसरा अध्याय 10 वचन कहता है। 2:13. Yes. 2:13. The breaker is gone up before them. They have broken forth and passed on to the gate and are gone out of threat. The king is passed on before them, and Jehovah at the head of them. और उनके आगे आगे भीड़ का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और उनका अगुवा है। Micah was a prophet, young prophet. और जो मिका है वो जवान एक भविष्यवक्ता था। And he used to say how God heads all of them. और वो बताता था कि कैसे परमेश्वर उन सभी के आगे चलता है। Before you see another day, God has seen and made it favorable for you. और आप दूसरा दिन देखने से पहले परमेश्वर उस दिन को देखता है और आपके लिए अनुग्रहकारी बनाता है। That is why he asked you not to worry about tomorrow. और इसलिए वो आपको कहता है कि कल की चिंता नहीं करना है। Matthew 6 verse 34 says. और मत्ती 6 उसका 34 वचन कहता है, Do not worry about tomorrow. और कल के बारे में चिंता ना करें। Don't worry, live for today. और आज के लिए जिए, कल की चिंता ना करें। God is always with you. और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। But do not worry, God is with you. और चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। Don't think today you get a good sleep. By tomorrow morning you get up. Say thank you Lord for another day. और जब आप रात में आज सोते हैं तो दूसरे दिन जब आप उठते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे अच्छी रात्रि के लिए। Yes, thank you Lord for another day. और धन्यवाद प्रभु दूसरे एक नए दिन के लिए। Do not, Matthew 6:34 says, do not therefore be anxious for the morrow,
for the tomorrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil therefore. और मत्ती 6 उसका 34 कहते हैं कि अंत कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, और आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। Don't worry what you're going to eat, what you're going to wear. God will take care of all that. और चिंता ना करें कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, परमेश्वर इन सारी बातों की चिंता करेगा। Just surrender to God and let God do और His परमेश्वर work. की अधीनता में हो जाए, और परमेश्वर इन सारी बातों को करेगा। Third, we see God behind you. और तीसरी बात हम देखते कि परमेश्वर हमारे पीछे है। First, we see God और पहले in हमने you. देखा कि God in you. परमेश्वर आपके अंदर है, God before you. परमेश्वर आपके आगे है। Third, we see God behind you. और तीसरी बात हम देखते कि परमेश्वर हमारे पीछे भी है। Hallelujah. God is also behind you as a rear guard. और परमेश्वर आपके पीछे भी है, As a rear guard. और एक सेनापति के अनुसार, And His glory protects you और उसकी महिमा हमें सुरक्षा देती from है, behind. और पीछे से भी। Isaiah 52 verse 12. और यशायाह 52 उसका 6 वचन। 52:12. Yes, and you, for Jehovah will go before you, and the God of Israel will be your rear guard. और जो 52 है उसका 12 वचन को हम पढ़ते कि क्योंकि तुम उतावल के निकालना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे से रक्षा करता चलेगा। Hallelujah, hallelujah. When the Israelites were crossing the Red Sea, the angel of the Lord withdrew from the front side and went behind them. और जब इज़राइल लोग जो है वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे, तो परमेश्वर उनके आगे से छोड़कर वो पीछे जाकर उनकी रक्षा करता है। That's why I say God's behind you. God is behind you और also. इसलिए परमेश्वर आपके पीछे भी से भी Isaiah रक्षा 58 करता है। verse 8. Isaiah 58 verse 8. और यशायाह 58 उसका 8 वचन। Hallelujah. And shall thy light break forth as the morning, and healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you. The glory of Jehovah shall be your rear ward. और तब तेरा परमेश्वर पो पटने के समान चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। Exodus 14 verse 19 says, the pillar of cloud also moved from in front and stood behind, coming between the armies of Egypt and Israel. और जो एक्सोदस की निर्गमन की किताब में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो बादलों का खंबा था वो पीछे जाकर जो है अग्नि के खंबे में परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करता है। Hallelujah, hallelujah. Satan and his power cannot even attack you from behind. और शैतान और उसकी जो सामर्थ है वो आपको पीछे से आक्रमण नहीं कर सकती। Hallelujah, hallelujah. No, because God is behind you. और जानिए कि परमेश्वर आपके पीछे से रक्षा करता है। You have seen how in movies how the enemies attack from behind. और आपने देखा है कि वो कैसे वो आपकी सुरक्षा करता है पीछे से। Hallelujah. How God, how you see how they attack from behind, but God protects you. और आप देखते हैं कि कैसे दुश्मन पीछे से वार करता है, लेकिन परमेश्वर आपकी पीछे से भी रक्षा करता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's why when the Israelites were crossing the Red Sea, the angel of the Lord withdrew from the front side and went behind them. And और इसलिए निर्गमन 14 उसका 19 में लिखा है कि तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइल की सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। hallelujah, the pillar of cloud also moved from in front and stood behind, coming between the armies of Egypt and the Israelites. और जो बादल का खंबा था उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा, ताकि वो इज़राइली लोग और जो है वो सेना है इज़राइल की मिस्र देश की उनके बीच में खड़ा रहा। You know, the Egypt could not see because God was behind them. और जो मिस्र की सेना है वो उनका पीछा नहीं कर पाई क्योंकि परमेश्वर उनके लोगों के पीछे था। Hallelujah, hallelujah.
Fourth, we see God around you. और चौथी बात हम देखते कि परमेश्वर हमारे चारों ओर है, God around you. और परमेश्वर हमारे चारों ओर है। Night and day, God and His angels are surrounding you like a wall of fire. और दिन और रात जो है परमेश्वर की जो स्वर्गदूत है वो अग्नि के खंबे में रहकर आपके चारों ओर रहते हैं। 1 Samuel 25:16 says, They were a wall unto us both by night and by day, and all the while we were with them, keeping the sheep. और पहला शमूएल 25 उसका 16 वचन में कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बना रहे। You know, David was taking care of his sheep, how he spoke night and day, and while we were taking care of the sheep, God was covering it. और जो दाऊद जो है वो अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब वो रात्रि में भेड़ बकरियां चराता था तो परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता था। So David says, God was a wall to us. और इसलिए दाऊद कहते कि परमेश्वर मेरी आड़ बना रहा। Psalm 34:7 says, The angel of the Lord encampeth around them that fear him. और भजन संहिता 34:7 कहता है कि जो परमेश्वर के डरवय है परमेश्वर उनके चारों ओर घेरे होता है And deliver them. और उनको Amen. छुड़ाता है। Hallelujah, hallelujah. Zechariah 2:5. और जकरिया उसका 2 उसका 5 वचन। For I say, Jehovah will be unto her a wall of fire around about, and I will be the glory in the midst of her. और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग सी शहर पनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। Hallelujah, hallelujah. Now fifth we see God at your side. और पांचवी बात हम देखते कि परमेश्वर हमारे बाजू में हैं। God at your right side. और परमेश्वर आपके दाहिने बाजू में हैं। God is at your right side. You can never be shaken. और आप कभी भी हिल नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर आपके दाहिने हाथ है। Psalm 16:8 says, David says, I have set the Lord always before me. He is at my right hand. I shall not be moved. Amen. और भजन संहिता 16:8 में दाऊद कहते कि मैं परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे बाजू में है, मैं कभी भी डरूंगा नहीं, डगमगाऊंगा नहीं। 120 Psalm 121:5. और भजन संहिता 121 उसका 5 वचन। Hallelujah. Jehovah is my keeper. Jehovah is your shade upon the right hand. और यहोवा तेरी रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। God will never leave you. Just trust Him. He's always at your right hand. और परमेश्वर पर भरोसा रखे, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा आपके दाहिनी आड़ में होता है। Hallelujah. Hallelujah. He's literally holding your right hand. और वो वाकई में आपके दाहिने हाथ को थामे हुए रहता है। Jesus is sitting at the right hand of the side of the Father, the highest place of greatest authority. और यीशु एक सबसे ऊंचे स्थान, एक अधिकार की जगह पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा हुआ है। Hallelujah. The right hand shows the hand of authority. और जो उस दाहिना जो बाजू है वो एक अधिकार को दिखाता है। Psalm 73:23 says, God says, I am continually with you. Thou hast been my right hand. और भजन संहिता 73:23 में वो कहता है कि तू लगातार मेरे साथ है और तू अपने दाहिने हाथ से मुझे थामे रहता है। God will never leave you in any of your trials, in any of your circumstances. He will hold your right hand and He is always with you. और परमेश्वर आपको कोई भी आपकी परीक्षा में या सताव में वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके दाहिने हाथ को थामे हुए रहता है। Psalm 110:1. और Okay, भजन 1 संहिता Peter 3:22 say, who is one the right hand of God? और कौन है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ है? Having gone into heavens, angels and authorities and power being made subject unto him. और पहला पत्र उसका 3 अध्याय और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी और बैठा गया और स्वर्गदूत और अधिकारों और सामर्थ उसके अधीन किए जाए गए। Hallelujah, hallelujah. That's why
we are always, God is at our side. और इसलिए हमेशा परमेश्वर हमारे बाजू में होता है। Since you are in Him, His presence is overshadowing you. और जब से आप परमेश्वर के अंदर रहते हैं तब से परमेश्वर की जो उपस्थिति आपको घेरे हुए होती है। God's left hand is under your head और परमेश्वर का बायां हाथ है जो आपके सर के नीचे होता है and caressing you. और वो आपको थामे हुए होता है। Songs of Songs 2:6 says, God's left hand is under my head and His right hand embraces me. Amen. Hallelujah. और हम वचन में देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो बायां हाथ है वो हमारे सिर के नीचे होता है और जो दाहिने हाथ से वो हमको थामे रहता है। Hallelujah. 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 God's left hand is under our head और परमेश्वर का जो बायां हाथ है वो हमारे सिर के नीचे होता है and the right hand, God's right hand embraces और us. दाहिने हाथ से वो हमको थामे हुए रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Songs of Song 8:3 says, His left hand should be under my head and His right hand should embrace me. और उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे और उसको दाहिने हाथ से मुझे थामे होता है। Don't worry, God's hand is under your head, left hand is under your head and His right hand embraces you. और वो चिंता ना करे क्योंकि परमेश्वर का बायां हाथ आपके सिर के नीचे है और वो दाहिने हाथ से आपको पकड़े हुए है। And He will never leave you nor forsake you. और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Sixth we see God under you. और जो छठवीं बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे नीचे है। Hallelujah, God under you. और परमेश्वर हमारे नीचे है। Hallelujah, hallelujah. God is under you. His everlasting arm are holding you from falling and carrying you. और व्यवस्था विवरण 33 उसका Like a 27 lamb. और 27 वचन हम पढ़ते हैं। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही उसका उल्टा समझकर कहने लगे कि हम उसकी बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। And the eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting arms, and He thrusted the enemy from before you and said, destroy. और जो अनंतकालीन जो परमेश्वर है वो हमारा छुपने का स्थान है, वो हमें उसके अनंत भाव भुजा से हमें संभालता है और वो शत्रुओं को भगाता है उसके सामने से। Hallelujah. God's everlasting arms are underneath you. और Amen. परमेश्वर के जो अनंतकालीन जो भाव भुजा है वो हमें पकड़े हुए है। So God's arm, His everlasting arm, and holding you from falling and carrying you like a lamb. और परमेश्वर के जो हाथ है वो हमें पकड़े हुए रहता है, थामे हुए रहता है और हमें वो गिरने से बचाता है। And He carries you like a lamb. और एक मेमने के अनुसार वो हमें उठाकर चलता है। Isaiah 41 says, comfort you, my people, saith your God. और यशायाह 40:1 कहता है कि सांत्वना दे मेरे परमेश्वर। Hallelujah. Holy Spirit is your comforter. He always comforts you. और पवित्र आत्मा आपका सांत्वना देने वाला है, वो हमेशा हमें सांत्वना देता है। God above you. और परमेश्वर हमारे ऊपर है। God above you. The last we see, God above you. और जो लास्ट अंतिम देखते कि परमेश्वर हमारे ऊपर है। He is above you. The shadow of the Almighty is covering you from above. और परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की जो छाया है वो हमें ऊपर से ढापे हुए है। Protecting you from the wicked spirits in the heavenlies. और जो दुष्ट आत्मा है जो स्वर्गीय उनसे हमें ढापे रखता है। Hallelujah. He is hiding you under His mighty wings. और वो आपको सामर्थ्य पंखों तले वो छुपाता है। Psalm 91 verse 1 says, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. और भजन संहिता 91 उसका एक वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Hallelujah. He that dwelleth, you dwell in the secret place of God. Spend time with God and He will lift you up. और जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, आप एक परमेश्वर की गुप्त जगहों में छिपे हुए होते हैं और हमें वहां पे आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। Psalm 91 verse 14. और भजन संहिता 91 उसका 14। Hallelujah. Psalm 91 verse 14.
Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. और उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। Hallelujah. David always says, he say, because he has set his love upon me, God says, because you have set your love upon God, God will deliver you and he will set you on high because he has known my name. और दाऊद हमेशा अपने स्नेह को परमेश्वर के ऊपर रखता था, इसलिए परमेश्वर हमेशा उसको छुड़ाता था। और जब हम अपने स्नेह को, अपने प्रेम को परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो हमेशा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। Hallelujah. Malachi the prophet says in verse 4 verse 2, fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in its wings, and you shall go forth and gambol as calves of the stall. और मलाकी 4 में लिखा है कि 4 और उसका 2 में लिखा है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फदोगे। Hallelujah. You fear God, the Son of Righteousness shall arise with healings in his wings, and you shall go forth and gambol as calves of the stall. और जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणें द्वारा तुम्हें चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फूदोगे। Hallelujah. Beloved, God is in you. और परमेश्वर प्रिय परमेश्वर आपके साथ में है। He is in you, before you, behind you, around you, at your side, under you, and above you. और परमेश्वर प्रियो आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके आगे है, आपके पीछे है, आपके नीचे है और आपके ऊपर है। Hallelujah. That's why Matthew 23:37 says, और इसलिए मत्ती उसका 23 उसका 37 वचन कहता O है, Jerusalem, Jerusalem, that killeth the prophets and stoneth them that are sent unto her, how often would I gather my children together, even as a hen gathers her chickens under her wings, you would not. Hallelujah. और इसलिए 23 उसका 37 वचन कहते कि हे यरूशलेम यरूशलेम, तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। Hallelujah. God gathers the chicken. Hallelujah. Can gather you under his wings. Hallelujah. और परमेश्वर अपने पंखों के तले आपको छिपाता है, आपको सुरक्षा कर देता है। Actually, you are enclosed and hemmed in hedged around by God. और आप परमेश्वर के द्वारा उसके पंखों तले ढापे गए और छुपाए गए हैं। Romans 8:31 says, if God is for us, who can be against us? और परमेश्वर का वचन रोमियो 8:31 में कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे बाजू है तो कौन हमारा विरोध हो सकता है। Speak the word. If God is for us, who can be against और us? इस वचनों को बोलिए अपने जीवन में कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। Hallelujah. Speak boldly today. If God is for us, who can be और against धाड़स us? से इस परमेश्वर के वचनों को बोलिए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। John 14:18 says, Jesus said, I will not leave you desolate, I will come unto you. और यूहन्ना उसका 14:18 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास चले आओ। Hallelujah, hallelujah. Verse 16 says, John 14:16. और यूहन्ना 14 उसका 16 वचन कहता है, Hallelujah. I pray that the Father and he shall give you another comforter and he be with you forever. Hallelujah. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। The Holy Spirit is there with you. He is always your standby. He is besides you. Use him for your glory. He will make your day, he will make you happy. और पवित्र आत्मा सदा सर्वदा आपके साथ है, आपके बाजू में है। आप उससे बात करें और वो हमेशा आपके दिन को आनंदित करेगा, आपके दिन को सफल करेगा। Thank you, Lord, that you are with us. और धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ है। Thank you, Lord, that you are in us. और धन्यवाद प्रभु तू हमारे अंदर है You are before us, और हमारे सामने है behind us, और हमारे पीछे है around
around us. और हमारे चारों ओर है, At our sides you are there. और हमारे बाजू में है, Under us you are there. और प्रभु हमारे तू आड़ में है, Above us you are और there. प्रभु तू हमारे ऊपर है, You has never left us alone, और प्रभु Lord. तूने हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा You है, have never left us as orphans. और तूने प्रभु हमें अनाथ के रूप में कभी नहीं छोड़ा है, You have given us another helper, the Holy और Spirit, तूने हमें एक और सहायक दिया है जो पवित्र आत्मा है, that He may abide with me forever and ever. और जो हमेशा सर्वदा तक हमारे साथ बना होता है। Thank you for the church, you said. Thank you for all the viewers that is listening to your word, Lord. Let your word speak into their life, और Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए, धन्यवाद प्रभु सारे लोगों के लिए जो हमें देख रहे सुन रहे, हमेशा तेरा वचन उनके साथ बना Their रहे, spirit, they would live in the spirit always. और वो हमेशा पवित्र आत्मा में बने रहे, They would walk in the spirit, और Lord. वो पवित्र आत्मा में चले प्रभु। As the mountain surrounds Jerusalem, so you surround us now and forever. और जैसे पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए, वैसे तू सर्वदा हमें घेरे हुए होता है, Because we are in Christ, Lord. क्योंकि हम मसीह यीशु में है प्रभु। Thank you, Lord, for Amay, Lord. He would not die, but would live to declare the और धन्यवाद works of प्रभु God. अमय के लिए कि वो जीवित रहेगा तेरे अद्भुत कार्यों को प्रकट करने के Every लिए। organ, every blood supply, nerve supply, and oxygen supply from head to toe and toe to head would function normally. और उनके शरीर के पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक सारे जो अवयव है वो अच्छे स्वस्थ होने पाए प्रभु। Thank you for Kennedy, Lord. He would live to declare the works of और God. धन्यवाद प्रभु कन्नड़ी के लिए, वो भी तेरे अद्भुत कार्यों को प्रकट करने के लिए जीवित रहेंगे। Lord, we thank you for Teresa auntie also. She would get up and walk. और प्रभु हम धन्यवाद देते आंटी के लिए, वो उठेगी और वो चलेगी। Oh, we thank you, Lord, for Vijay Salve also, Lord. He would arise and the God's breath would breathe. और हम धन्यवाद upon देते प्रभु him. विजय सालवे के लिए, वो भी उठेंगे और तेरे श्वास उसके अंदर होगा। Hallelujah. God of, you are a God of impossible things, और Lord. प्रभु तू असंभव का परमेश्वर है। You said, I'll build my church and the gates of Hades will not prevail. और प्रभु तूने कहा कि जो स्वर्ग लोक के अधलोक के जो फाटक है वो कलीसिया के विरुद्ध में कभी प्रबल नहीं होंगे। Thank you, Lord, for healing Nihit, Lord, baby Nihit, Lord, from fever gone by the blood of और Jesus. धन्यवाद प्रभु जो बच्चा निहित है उसको चंगा करने के लिए जो बुखार था उसके शरीर में से चला गया है। Hallelujah. Thank you, Lord, for Vijay Ursula's mom, Rukmani, Lord. She's walked by the grace of और God. धन्यवाद देते प्रभु रुक्मिनी आंटी के लिए, वो भी तेरे अनुग्रह से चलेगी। Thank you, Lord, for Prabhudas mother-in-law, Lord, Vaishali's mom, Lord, Bhima Bai. और प्रभु धन्यवाद देते वैशाली की माता के लिए, भीमा बाई के लिए भी। She would also get up and walk by faith, God. और वो भी प्रभु उठकर विश्वास के साथ चलेगी। She would arise and say, my God has healed me. और वो उठेगी और कहेगी कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। Nothing is impossible with you, और God. कुछ भी असंभव नहीं प्रभु तेरे Thank लिए। you, Lord, for every family, every individual, Lord. Everyone who is watching them, bless them abundantly, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु हर एक परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से हमें देख रहे हैं, उनको आशीर्वादित कर। Lord, bless them in their business with 100-fold. और प्रभु उनके व्यवसाय में 100 गुना आशीर्वादित कर Lord, उनको। I pray for every husband and wife, Lord. Heal their wife and husband, heal their relationship by the blood of Jesus. अब प्रभु Lord. हम हर एक पति पत्नी के रिश्तों को प्रार्थना करते हैं तेरे लहू के द्वारा उनके रिश्तों में चंगाई दे। Bind them with your love with cords that cannot be broken. अब प्रभु तेरे प्रेम के बंधनों से उनको बांधे रख जो कभी नहीं टूट सकते। Let what God has united, let no man separate, और Lord. क्योंकि जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई भी मनुष्य तोड़ने ना पाए। We thank you for the church, God. और धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। They overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. और Lord. प्रभु वो जो मेमने का लहू है और उनकी गवाही से वो जयवंत होंगे। Thank you for every husband and wife, Lord. Let your peace that passes understanding और would धन्यवाद rule their प्रभु। hearts and minds in Christ Jesus. और धन्यवाद प्रभु हर एक पति पत्नी को लिए जो तेरी शांति है उनके जीवन में हमेशा बनी रहे। The love of God has been shed abroad in their hearts through the Holy Spirit. और जो परमेश्वर का प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में बहाया गया है। Help them to stand for you, Lord. Love their husband, love their wives, Lord. Love their children's, Lord. Love their mother-in-laws, their mothers, Lord. और होने दे प्रभु वो Brothers, तेरे लिए Lord. खड़े होने पाए और अपने बच्चों से, अपने पत्नियों से, अपने पति से, अपने सास ससुर से प्रभु प्रेम करने पाए। Lord, we pray nothing
nothing is too difficult to say. और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। We do not have, Lord, we do not walk, we do not hate, Lord, but we walk in forgiveness, Lord. और प्रभु हम घृणा नहीं करते, लेकिन हम क्षमा करते हुए आगे बढ़ते हैं As the प्रभु। mountain surrounds Jerusalem, so you surround us now and forever because we are in Christ. और जैसे पहाड़ यरूशलेम को घिरे हुए, वैसे तू हमें घिरे हुए, क्योंकि हम मसीह में हैं। Thank you for every bride who are waiting for their husbands, Lord. You would release them at the right time, और Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक दुल्हन के लिए जो दूल्हा ढूंढ रहे, प्रभु आप उनको सही समय में उनका जीवन साथी देगा। Bless even our boys, Lord, who are waiting to get married, Lord. Bless them with wives after your heart, और Lord. प्रभु जो जवान लोग शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको भी एक सही साथी के द्वारा आशीर्वादित कर। Bless, Lord, those couples who are waiting, Lord, to get pregnant. Release them, Lord, and bless them with a baby, और Lord. जो पति पत्नी प्रभु जो गर्भ धारणा की बाट जोड़े, प्रभु उनको भी आप संतान के द्वारा आशीर्वादित करें। Nothing is impossible with God. और कुछ भी प्रभु तेरे लिए कठिन Lord, नहीं है। meet their needs, Lord. Speak to their needs, God. और प्रभु उनकी जरूरत को पूरा कर। Lord, we pray for a case, Lord, whose family, Lord, the builder has taken the money and gone, Lord, is not returning back. Lord, you bring that court in favor of that person, और Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बिल्डर ने जो पैसा देकर प्रभु जो उनके लिए उनके बाजू में नहीं हो रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके बाजू में उनका न्याय होने पाए। And it would, the whole amount what they owes would come into their account, Lord. और प्रभु जो भी वाचा जो भी बातें हैं वो उनके बाजू में होने पाए। Oh, Lord, we look up to you. You are the author and the finisher of our faith, और Lord. प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं, क्योंकि तू हमारे विश्वास का कर्ता और कर्ता धरता है। Thank you, Lord, Father, for every children who are writing exams. Bless, give them wisdom how to answer it, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु उन बच्चों के लिए जो परीक्षाओं को लिख रहे हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान दे लिखने के लिए। We thank you, Lord, for the church, God. धन्यवाद देते प्रभु कलीसिया के लिए। You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और प्रभु तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। Cover each family, each individual with your precious blood of Jesus. और हर एक परिवार को, हर एक व्यक्तिगत को प्रभु तेरे लहू के द्वारा तू ढापे हुए रख। Prevent them from darts of the evil one. और प्रभु तू बुराई से उनको दूर रख। Set your guardian angel of protection over them. और प्रभु तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा उनके चारों ओर होने पाए। Overshadow them with the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से उनको ढापे हुए रख। May the love of the Father और परमेश्वर का प्रेम and the grace of our Lord Jesus और Christ पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. और हमेशा हमेशा के लिए हमारे We साथ thank रहे। you for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Whatever number is going on through the mobile, Lord, they would press down, shaken together, running over, Lord. You would bless them with और प्रभु 100-fold. जो भी नंबर्स प्रभु जो अकाउंट नंबर है प्रभु वो उनमें भागी होने पाए और प्रभु तू उनको बहुतायत से आशीर्वादित कर। We thank you for your word, Lord. धन्यवाद प्रभु तेरे वचनों के लिए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन Amen. Amen. आमेन।